of each and every young girl is a mark of God's quality. In this beautiful world, each girl child has the privilege to see the magnificent light, and it is responsibility of the people to give them the importance they deserve. Good afternoon, everyone present here. I, Divyanshi, along with my fellow anchor Chavi, welcome you all on the occasion of International Girl Child Day. To empower and amplify the voices of girls around the world. Well, this day is life blessing as it acknowledges the importance, power, and potential of adolescent girls by encouraging the opening up of more opportunities for them. To begin the program, I would like to invite Founders Ma'am, Sashi Ma'am, Kamlesh Ma'am, and Poonam Ma'am to pay flowers to Ma Saraswati and seek her blessings. Century, women were considered as a subordinate to men and were denied their rights. The birth of a girl child was not celebrated in the family. Child marriages were common. Polygamy means men having more than one wife was common in the family of ruling princes and big zamindars. It was particularly widespread all over the India. Parda system was common in both Hindu and Muslim families. The life of widows was pathetic. Their remarriage of widows was a rare phenomenon and often not encouraged. शिक्षा के विकास और प्रसार के साथ लोगों को अब महिलाओं के जीवन की परेशानियों का एहसास होने लगा। अब तक औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप संचार के नए साधन विकसित हो चुके थे। प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने प्रकाशन को आसान बना दिया था। By the 19th century, many social reformers rise. Raja Ram Mohan Roy rise as the one of the greatest social reformer for the upliftment of women in the society. Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj in Calcutta, worked for the emancipation of women. He wanted the women to acquire a respectable status in the society. The Samaj condemned sati, was against the Parda system, opposed child marriage and polygamy. It led movements in favor of remarriage of widows and education of women. His efforts bore fruit and then Governor General Lord William Bentinck abolished the practice of sati in 1829. Raja Ram Mohan Roy also advocated freedom and equality for women. Education should be given to all girls, whether she is urban or rural. Girls are not less than boys. Education will take them up a way. Education should be given to all girls. It gives them respect and they well. Girls are becoming bold and bright stars. This is due to their education of girls. Right to education is for all people in the society, even for a girl. Now, I would like to invite our angels on stage to dedicate their performance. On girl side, please join us in celebration. युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती जो प्यार से रुतबा दे शामों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी 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 छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना है तुझसे ही है रोशनी साया बने तुझसे
कभी तो विद्या का दीपक जलाए, कभी तो माँ काली, कभी तो ममता का आंचल फैलाए, डोर तो प्यार की, तू आस तू आरती, कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, तू ही जननी और धागिनी, तू ही मेरा दुलारी, कई रूप है A huge round of applause. 19th century, Ishwar Chand Vidyasagar was also emerged as the one of the greatest social reformers for the upliftment of women in the society. He submitted petitions with regard to his demands in the Indian Legislative Council and the British government. Finally, his efforts bore fruits and the Widow Remarriage Act of 1856 was passed. Ishwar Chand Vidyasagar was the witness to the first widow remarriage in Calcutta in 1856. Ishwar Chand Vidyasagar also stood up for women education. He opened 35 schools for girls in Bengal between 1851 and 1855 with his own money and enrolled 1,300 students. Indian women had been denied the benefits of education for centuries. Even in ancient times, it was only the ladies of royal households or upper classes who were educated. Pandita Ramabai earned fame as a rebel champion of women's rights. Ramabai was a scholar of Sanskrit and always felt that Hindu religion was oppressive towards women. She challenged the repressive and orthodox elements of Hindu society. She was the author of the book High Caste Hindu Women, where she has discussed the plight of upper caste Hindu women and widows. She found Sarda Sadan, a school for widows in Bombay, and a shelter home Mukti near Pune. Now I would like to invite our angels on stage to dedicate their performance on Girl Child.
the middle and the lower classes of the society, where women were mostly confined to the domestic chores. Their main function was to take care of their household activities and bring up the younger ones of the family. In Maharashtra, Savitribai Phule opened 5 schools for girls in and around Pune in 1848. Savitribai Phule was the first woman teacher of modern Maharashtra. A school for the monk and Meher untouchable caste was opened in 1851, for which they were widely criticized by the orthodox groups for the society. Ruqayya Sakhawat Hussain started schools in Patna and Calcutta for Muslim girls. She started another school at Bhagalpur after the death of her husband. Indian women began to take admission in universities by the 1880s. Most of them became teachers while others qualified as doctors. Mrs. Anandibai Joshi was the first Indian woman to become a doctor. Girls play multiple roles in the household, society, and the economy. They go to school, help with housework, work in factories, care for elder and younger family members, and prepare themselves to take on the responsibilities of adulthood. Then, why discrimination? Everyone should come together and support the girls in all forms, including the field of education, and increase awareness of the struggles being faced by girls today. What is the role of people in making this day more meaningful? To focus on the importance of International Day of Girl Child, I would like to invite our angels on stage to perform on the song Chal Kudiye. Please join our hands together for them. मेरी राखी पहनता है ना तू मेरी प्रोटेक्शन में है। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी। चल कुड़िए उठ कुड़िए, चल कुड़िए उठ कुड़िए, ये अंबर तेरे आगे है, तेरे दम से दुनिया जागे है, बेखौफ समंदर अड़िए तेरा जिगरा, ये अंबर तेरे आगे है, तेरे दम से दुनिया जागे है, बेखौफ समंदर अड़िए तेरा जरिया है, तू जिंदगी का जरिया है, तूफानों से लड़ जाए तेरा जिगरा, औलाद का दिल बन जाएंगे ये जो कच्चे कोमल धागे हैं, चल कुड़िए फलक कुछ है दूर के दरमिया, कुछ और नहीं है जिंदगी, बस इम्तिहान इम्तिहान, कुछ और नहीं है जिंदगी, बस इम्तिहान इम्तिहान, पूरा होने की ख्वाहिश में कुछ टुकड़ियां भी आधी है, बेखौफ समंदर तेरा जिगरा, तेरे ख्वाब मामूली ख्वाब नहीं, ये हिम्मत के शहजादे हैं, चल कुड़िए उठ कुड़िए चल। Now, I would like to invite our manager sir on stage. Please join our hands together. नमस्कार, salam, sat sri akal, and a very good afternoon. I sincerely wish on the
occasion of Girl Child Day that all the girls should be leading in every sphere of life. It will be fantastic to see a sister holding the hand of a brother and guiding. It will be fantastic to see the home being dictated by a mother. It will be fantastic to see the institutions being led by the ladies, and it will be even fantastic to see if we can see one day the President and the Prime Minister of India together can be ladies. That day maybe is not far away. Today, when we see girls studying, playing, girls have already started leading, in fact, in every sphere of life. यहाँ जहाज चलाने से लेकर, रॉकेट चलाने से लेकर, देश को प्रधानमंत्री के रूप में ड्राइव करने से लेकर अलग अलग सब जगह बेटियों ने अपनी जगह बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। 33% बहुत जल्दी भारत की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट भी करेंगी, लेकिन हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 50% भारत की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब ये पार्टियों का 2021 और 2500 की जो बहलाने वाली चीजें हैं ना, बालिकाएं बड़ी होके उनसे मानने वाले नहीं हैं। ये पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। अब पॉलिटिक्स चलेगी साडा हक, साडा हक, साडा हक। हाँ जी, जब हमारी बेटियां कहेंगी मेरा हक इधर दे दीजिए जमाने वालों, मुझे 50% चाहिए, क्योंकि हम धरती पर 50% हैं, नथिंग लेस नथिंग मोर। वाई ओनली 33%? मैं आज का दिन ऐसा है, ये विद्यालय तो आरंभ भी एक लेडी ने किया, इसमें ज़्यादातर पढ़ाने वाले भी लेडीज ही हैं। हमें तो कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में जगह दे देते हैं तो हम पढ़ा लेते हैं। तो मैं अब जोरदार तालियों से पाकिस्तान का स्वागत कीजिए। आजकल वैसे अच्छा लगता है। पिछले 2 साल में मैं 2 बहुत अच्छी चीजें देख चुका। जब बेटी जन्म होके हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने लोगों को बैंड बजाकर नई जन्मी बेटी को घर लाते देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्षमा चाहूंगा, इस तरह के बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर मैम आने वाली तो फिर मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी, क्योंकि कुछ पहले तो मैं इस प्रांगण में उपस्थित मेरे श्रद्धा के केंद्र बिंदु सर्व में सभी मातृशक्ति और इस भारत के भविष्य बच्चे, कुछ चीजें समझना, मैं नहीं समझाऊंगा, इसलिए देखिए कुछ शब्द हैं साहित्य के और ये ऐसे नहीं बने। सूर्य और किरण
जल और धारा समझना, सूर्य और किरण, जल और धारा, यज्ञ और दक्षिणा, ज्ञान और पुस्तक, साधन, राग और रागनी, ये बहुत सारे शब्द हैं। अभी मैं थोड़ा सा में बोलूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, पर इन्हें समझना। यानी हर आकाश और पृथ्वी, सागर और लहरें, हर एक के पीछे स्त्रीलिंग है। और जब पृथ्वी पर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तो पहले मातृशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि कुछ ऐसी अलग जगह, जो सुबह सर ने बहुत कुछ कह दिया, कि हम अगर अपनी अपनी ड्यूटी समझ जाएंगे तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यहां पुरुष, मैंने अभी सब नाम जितने लिए हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग, यानी जब तक इस समाज में समभाव की स्थापना नहीं होगी, एक समाज, एक राष्ट्र, एक विचार की स्थापना असंभव है। जो प्रारंभ से आदिकाल से उस भाव को, उस विचार को सबको आत्मसात करना पड़ेगा। ये किताबें सर ने कह दिया, अब मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि पुस्तकस्था तेरा विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद धनम। पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान और किसी के दूसरे के हाथ में दिया गया पैसा समय आने पे कभी काम नहीं आता है। तो ये जो इतना ज्ञान है, ये परीक्षा के लिए नहीं है, ये जीवन में उतार कर आत्मसात करके हमें मनुष्य बनाया है, इसलिए बनाया है। तो समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, एक समाज के लिए दिया है। आज बहुत सारी विकृतियां पैदा समाज में है, अभी बहुत कुछ काम बाकी है। और सर कह रहे थे, सही कह रहे थे कि अभी प्रलोभन वाली बात है, जहां काम होना चाहिए वहां तो 1% काम है ही नहीं। कहां है चिकित्सालय, कहां है गरीबों के लिए न्याय? ये सब हम सबको करना है। आज गरीब होना अभिशाप है। आज गरीब को सही मायने में नहीं अपना इलाज नहीं कर सकता, शिक्षा नहीं ले सकता, जी नहीं सकता। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बेटियों से भी यही कहूंगा कि डर वाली जो बात है नहीं, जो बेटियों को सिद्ध करना है कि हम भी बेटियां हैं और हम किसी से कम नहीं। वैसे सिद्ध किया है, चाहे अपाला हो, घोषा हो, लोपामुद्रा हो, केकई हो, कोई भी हो, कितनी महिला है, कितने नाम लेंगे अभी तो शुरू से लेकर के। सत्यवती है, महिलाओं को शक्ति है कि बताओ प्राणों को वापस ले आई। हम कम समझते हैं। द्रौपदी है, अभी वर्तमान की बात करें तो बहुत तमाम नाम है, सर ने गिनाए। ऐसी संख्या लाखों में है जिन्होंने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए ज्ञान का ही अलग नहीं जगाई। समय आने पर अपने हर कौशल से, चाहे वो युद्ध का कौशल हो, चाहे ज्ञान का कौशल हो, चाहे वो दान का कौशल हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं रही हैं। तो उस शक्ति को पहचानना, उसका अध्ययन करना, उसे आत्मसात करना है। तब तक चाहे पूजा हो, पाठ हो, विद्या है, पढ़ लिख करके रखेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, दवाई को भी पेट में नहीं खाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। खाना पड़ेगा, ये ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, जीवन में उतारना करने पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर नहीं है। नॉलेज मल्टीप्लाई, इंप्लीमेंटेशन इज इक्वल टू पावर। नॉलेज को मल्टीप्लाई करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसमें रखे रखे तो सड़ जाएगा। इसलिए बेटियों से भी आग्रह है कि ये सिद्ध करके दिखाइए कि पड़ोसियों को लगे कि देखो फलाने की बेटी ने ये किया है, फलाने की बेटी देखो समाज के लिए ये किया है। हम पढ़ रहे हैं तो किसके लिए? नौकरी के लिए नहीं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। इस समाज का हित करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, राष्ट्र का कल्याण करने के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हमारी तरफ आंख उठा के देख रही हैं, हमसे जो इंतजार कर रही हैं, हमसे जो आशा लगाई बैठी हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें
ऐसा काम करना, ऐसा लक्ष्य लेना, ऐसी शिक्षा लेना, परीक्षा के लिए नहीं। अभी तो टॉपिक आ रहे हैं तैयार करने, नहीं। हमसे समाज को क्या उम्मीद है, इस राष्ट्र को क्या उम्मीद है। आज का जो वर्तमान है वो कल का भविष्य है। जैसा आज का वर्तमान होगा कल का वैसा भविष्य होगा। तो ऐसी शिक्षा देने के लिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपनी माओ ने अपने ये भगत सिंह को जन्म देने वाली कौन थी? वो माँ। शिवाजी को जन्म देने वाली कौन थी? माँ। कलाम साहब को जन्म देने वाली कौन थी? माँ। सिरों से लड़ाने वाली माँ। और राम को राम बनाने वाली माँ, क्योंकि जिनका लोग नाम नहीं रखते हैं। मैं रामायण में सबसे अगर आदर्श किसी को मानता हूँ महिला को, तो केकई को मानता हूँ। अगर केकई ने इतना त्याग नहीं किया होता, इतनी बुराई नहीं चली होती, तो राम वन नहीं बनते। राम बन गए, राम वन में नहीं गए, जंगल में बन गए। वो अयोध्या जाने की बात राम बने। तो केकई का देखो आचरण देखिए, लोग नाम नहीं रखते। तो ऐसी महिलाओं को बहुत सारे उदाहरण है। कहां से बोलना शुरू करें? महिला किसी फील्ड में कम नहीं है, इसलिए भिखारी नहीं कहलाना। हम अपने को सिद्ध करके दिखाएं। सिद्ध करना इसे कहते हैं, सिद्ध करना। तो आज संकल्प लेके जाइए कि हम सिद्ध करके दिखाएंगे। और पड़ोसियों को, पड़ोसी ये नहीं कहेंगे इसके बेटे के हमारे बच्ची को नहीं भेजेंगे। पड़ोसी ये कहे देखिए फलानी बच्ची कितनी मजबूत है, फलानी महिला कितनी मजबूत है, आप भी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती। ऐसा संकल्प लेकर के। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मैं क्षमा चाहूंगा, पता नहीं मुझे बीमारी बोलने की। तो बस मैं धन्यवाद आप लोगों को मुझे समय दिया। थैंक यू सर। मैं और मैं सबके सहयोग से, विद्यालय के सहयोग से, सर के सहयोग से मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ बड़ी मैम को आए और अपना आशीर्वचन सबको दें। प्यारे बच्चों, अध्यापकगण, मैनेजर सर और आप सब जो हैं, आज का दिन जो मना रहे हैं हम, जैसा कि सर ने बताया, पाठक सर ने बताया, उस सब के बारे में तो हमें सोचना ही है कि आज क्या क्या बातें हमें बताई गई। और हमें सबको ये भी पढ़ लेना है कि हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे। हम अपने साथ पढ़ने वाले जो छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं, पड़ोस में साथ में आपके सहपाठी हैं, उन सब का मान रखना शुरू करेंगे, सम्मान करेंगे। और घर में दादी हैं, फिर माँ हैं, बुआ हैं, या फिर चाची हैं, ताई जी हैं, जो भी महिलाएं हैं, उन सब की बातों पे भी गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में जो जीवन में काम आने वाली बातें हैं वो वहीं से हम सीखते हैं। और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सम्मान देना शुरू करें तो आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। और जहाँ तक अवसर की बात है, बेटियों को आज अवसर जो है हर माँ बाप, समाज, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि बेटियों को पूरा अवसर दिया जाए और बेटियों के लिए सब कुछ खुला है। अब बेटियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके और सही तरीके से अपनी मेहनत करें और जो वो कुछ पाना चाहती हैं वहाँ तक पहुँचें। तो इस तरह से बेटियां अपने आप ही अपने अधिकारों को पा लेंगी और बहुत अच्छा समाज में कर पाएंगी। इस तरह से फिर हमें अलग से बेटी दिवस मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बराबर हो जाएंगे और बढ़िया करके करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, आज का संदेश यही है कि हम सम्मान रखेंगे एक दूसरे के प्रति, और जहाँ पर भी हमें ऐसा लगे कि भाई हमें यहाँ पे बात सुननी चाहिए, सही कह रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान से सुन के अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।